السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی عوام کو ہفتے کے روز نوراتری کے پہلے دن مبارکباد پیش کی ہے اور عوام کی اچھی صحت اور بہتر مستقبل کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ مودی نے ہفتے کی صبح ٹویٹ کرتے ہوئے عوام کو مبارکباد پیش کی اور نوراتری کے موقع پر ملک میں امن و سلامتی اور عوام کے لیے صحت اور ترقی کے لیے دعا کی۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر کے 180 سے زیادہ ملکوں میں کورونا وائرس کا خوف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی تک 3 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ وائرس 11 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی زندگی چھین چکا ہے۔ ہندوستان میں بھی ہر روز کووڈ-19 کے معاملے بڑھ رہے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری کیے گئے اپڈیٹ کے مطابق ملک میں کورونا کیسز کی تعداد 74,32,680 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 62,212 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس دوران 70,816 مریض ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ اب تک کل 65,24,595 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ بہار انتخابات میں پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی ہوئی ہے انٹری۔ بی جے پی نے کانگریس پر حملہ بولا ہے۔ بہار میں کانگریس پارٹی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق طلبہ ایسوسی ایشن کے صدر مشکور احمد عثمانی کو ضلع دربھنگہ کے تحت جالے اسمبلی سیٹ سے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ ان کی امیدواری پر کانگریس پارٹی میں بھی اندر احتجاج کی آوازیں بلند ہونے لگی ہے۔ کانگریس کے سابق ایم ایل اے اور ٹکٹ کے دعوے دار رشی مشرا نے عثمانی پر جناح وادی ہونے کا الزام لگایا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کی حیثیت سے عثمانی پر الزام ہے کہ انہوں نے محمد علی جناح کی تصویر اپنے پاس رکھی تھی اور جناح کی تمجید کی تھی۔ اب اس معاملے میں بی جے پی رہنما اور مرکزی وزیر گری راج سنگھ بھی تنازع میں کود پڑے ہیں۔ گری راج نے کہا کہ گاندھی کے ملک میں جناح کا کیا کام؟ انہوں نے کہا کہ ملک گاندھی کے راستے پر چلے گا یا جناح کے راستے پر۔ ان کے مطابق عثمانی نے جناح کی تصویر نکالنے پر تنازع کھڑا کیا تھا۔ مہاراشٹر کے پونے، اورنگ آباد اور کونکن ڈویژن میں گزشتہ 3 دنوں سے ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے ابھی تک کم از کم 48 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مغربی مہاراشٹر میں بارش سے متعلق واقعات میں 29 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ وسطی مہاراشٹر کے اورنگ آباد ڈویژن میں 16 اور کونکن ڈویژن میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ مغربی مہاراشٹر میں تقریباً 3,000 مکانات تباہ ہو گئے، جہاں سے 40,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران مسلم پرسنل لاء بورڈ نے زوم پر مجلس عاملہ کا اجلاس منعقد کیا اور متعدد امور و مسائل پر غور و خوض کے بعد کئی اہم فیصلے کیے۔ 2 دن پر محیط اس میٹنگ کی صدارت بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسین ندوی نے کی اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نے کارروائی چلائی۔ جنرل سیکریٹری اور متعدد ارکان عاملہ نے الہ آباد ہائی کورٹ کی سی بی آئی کے بابری مسجد انہدام کے ملزموں سے متعلق فیصلے پر سخت حیرت اور دکھ کا اظہار کیا۔ کورٹ نے متعدد واقعاتی شہادتوں اور گواہوں کے بیانات اور خود ملزمین کے اقبال جرم کے باوجود ناکافی ثبوت کی بنا پر تمام ملزمین کو بری کر دیا۔ بورڈ نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ سی بی آئی اس فیصلے کو چیلنج کرے یا نہ کرے، بورڈ اسے ناقابل فہم فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ اجلاس میں ملک کی عدالتوں میں مسلم پرسنل لاء سے متعلق جاری مقدمات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور قانونی کمیٹی کو ہدایت جاری کی گئی۔ متھرا کی ضلعی عدالت نے شری کرشنا جنم بھومی کے قریب واقع شاہی عیدگاہ مسجد کی برخاستگی کا مطالبہ کرتے ہوئے داخل کردہ دیوانی مقدمے کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے اور سماعت کی اگلی تاریخ 18 نومبر مقرر کی ہے۔ قبل ازیں 30 سپٹمبر کو سینٹرل سول جج چھایا شرما نے یہ کہتے ہوئے درخواست سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کے مقدمے میں کوئی میعاد نہیں ہے۔ میڈیکل انٹرنس ایگزام نیٹ کے نتیجے کا جمعے کی رات اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں اڑیسہ کے شعیب آفتاب نے 100% نشانات حاصل کرتے ہوئے ٹاپ رینک درج کرایا اور دہلی کی آکانشا سنگھ نے دوسرا مقام پایا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے عہدیداروں نے بتایا کہ مجموعی طور پر 7,71,500 امیدوار اس امتحان میں کوالیفائی ہوئے ہیں، جس کے لیے زائدہ 13,68,000 امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ یہ ٹیسٹ اردو کے بشمول 11 زبانوں میں منعقد کیا گیا۔ سب سے زیادہ کوالیفائی امیدواروں کی تعداد تریپورہ 88,889 سے ہے، جس کے بعد مہاراشٹر 79,974 کا نمبر ہے۔ تاہم آج کا موقع 18 سالہ شعیب کے نام پر یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے 720 میں سے 720 نشانات حاصل کیے۔ اڑیسہ میں رورکیلا سے تعلق رکھنے والے شعیب اپنی طبی تعلیم کی تکمیل پر کارڈیئک سرجن بننا چاہتے ہیں۔ شعیب نے کہا کہ کورونا وائرس وبا کے درمیان امتحان کے تعلق سے دباؤ بڑھ گیا تھا، لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن کے موقع کو مزید پڑھائی کے لیے استعمال کیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کے رہنما غلام نبی آزاد کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ غلام نبی آزاد نے جمعے کو خود ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر کوارنٹائن میں ہیں۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں رابطے میں آنے والوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں صحت کے رہنمانہ خطوط پر عمل کریں اور اپنی جانچ کروائیں۔
बी जे पी के सदर JP नड्डा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सियासी सूरत-ए-हाल में ज़बरदस्त तब्दीली आई है। बिहार में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद को अजीम अक्सरियत मिलने के नतीजा है कि आर्टिकल 370 राम जन्मभूमि तनाज़ा और 3 तलाक़ को ख़त्म किया जा सका। नड्डा ने जुमे को बसवा में बीजेपी उम्मीदवार अनिल सिंह के हक़ में इंतखाबी इजलास को खिताब करते हुए कहा कि साल 2019 में लोकसभा के इंतखाबात में बिहार की 40 में से 39 नशिस्तें और पूरे मुल्क से मिली अजीम अक्सरियत का नतीजा है कि अटूट हिंदुस्तान की तामीर में रुकावट रहे आइन के आर्टिकल 370 और 35A के नज़्मों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जोड़ी ने ख़त्म कर दिया। बीजेपी सदर ने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक राम जन्मभूमि तनाज़े का हल ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में NDA को मिली अजीम अक्सरियत और मोदी के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ही अयोध्या में सालों से ज़ेर-ए-अल्तवा राम जन्मभूमि तनाज़े का हल निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि अब वहाँ राम मंदिर की तामीर हो रही है। मुंबई में आम जिंदगी मामूल पर लाने की जानिब अहम कदम बढ़ाते हुए और मुलाजमत पेशा ख्वातीन को बड़ी राहत देते हुए रियासती हुकूमत 6.25 माह से आम मुसाफिरों के लिए बंद लोकल ट्रेनों में तमाम खातून मुसाफिरों को तयशुदा औकात में सफ़र की इजाज़त दे दी है। रियासती हुकूमत ने रेलवे से सिफारिश की है कि आज से तमाम ख्वातीन को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से आखिरी ट्रेन तक लोकल ट्रेनों में सफ़र की इजाज़त दी जाए। अपने न्यूज़ चैनल के प्रोग्रामों के जरिए समाज में फिरके वाराना मुनाफरत फैलाने के मुलजिम अर्नब गोस्वामी चैप्टर केस में जुमे को वर्ली में वाक़ ACP के दफ्तर में खुद हाजिर नहीं हुए, बल्कि इनके वकील ने वहां पहुंचकर पुलिस के सवालों का तहरीरी जवाब दिया और ये अपील भी दाखिल की कि अर्नब को ज़ाती तौर पर हाजिर होने से मुस्तस्ना रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा की इस पिटीशन को सरजनिश करते हुए खारिज कर दिया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की खुदकशी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र हुकूमत को बर्खास्त करने और सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया गया था। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, AS बोपन्ना और राम सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल बेंच ने पिटीशन को समाअत के लिए मंजूर करने से इनकार करते हुए सवाल किया कि क्या सिर्फ इसलिए कि बॉलीवुड का एक अदाकार मर गया आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आइन की पैरवी नहीं हो रही है। सह-रुकनी बेंच ने अर्जी गुजार एडवोकेट विक्रम गहलू से मजीद कहा कि आपको ये आज़ादी है कि आप सदर जमहूरिया से राब्ता करें, मगर यहाँ मत आइए। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने नमाज जुमा से कबल खिताब में कहा कि मुल्क के मुसलमानों पर अल्लाह का फजल है, वरना जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है इससे तो हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। इंशाअल्लाह मिल्लत इस्लामिया के साथ गैबी मदद आती रहेगी, नेक आमाल से गफलत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालीम का हक़ हर शहरी का है, इसमें अक़लियत और अक्सरियत का कोई मसला नहीं है, फिर भी कुछ लोग इस आइनी हक़ से मुस्लिम अक़लियत को महरूम करना चाहते हैं। बाराबंकी में दलित लड़की के साथ हुई इज्तिमाई आबरूरेज़ी के वाक़े के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर मुजाहरा किया। पार्टी की खातून सेल की सदर नीलम यादव की क़यादत में किए गए मुजाहरे के दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है, जिसमें कारकुनान को चोटें भी आई। पुलिस ने कारकुनान को हिरासत में लेकर एक्यूड गार्डन पहुंचाया है। मुजाहरे के दौरान पार्टी की ख़वातीन सेल की सदर नीलम यादव ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में रियासत की बहू बेटियों की आबरू महफूज नहीं रही है। आए दिन रियासत में बच्चियों की आबरूरेज़ी व कत्ल हो रहे हैं। योगी हुकूमत मुजरिमीन पर कार्रवाई करने के बजाय वारदातों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर कार्रवाई करने में मसरूफ़ है, जबकि इसे आबरू से खिलवाड़ करने वाले कातिलों को गिरफ्तार करने और इन्हें कैफर किरदार पहुंचाने में सारी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि मुतालिका कमेटी का फैसला आने के बाद हुकूमत बेटियों की शादी की सही उम्र तय करेगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से हिंदुस्तान के ताल्लुक के 75 साल मुकम्मिल होने पर 75 रुपए का यादगारी सिक्का जारी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी बेटियों की शादी की सही उम्र तय करने के ताल्लुक से बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में वादों और जवाबी वादों का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बाइडन ने रिपब्लिकन के नामजद उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतनाज़ा फैसले को मनसूख कर देने का वादा किया है, जिसके जरिए कई मुस्लिम मुल्कों के बाशिंदों को अमेरिकी वीज़ा जारी न करने का फैसला किया गया है। जो बाइडन ने वादा किया कि वो मुस्लिम अमेरिकियों को समाजी और सियासी मिहाज पर हर शोबे में शामिल करेंगे और इनके ज़ेर क़यादत नस्ब व नस्ल में भी मुसलमानों को जगह दी जाएगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में ट्रंप के मुस्लिम इम्तना का जिक्र किया और कहा कि 3 नवंबर के इलेक्शन में अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो ट्रंप के इस मुतनाज़ा फैसले को मनसूख कर देंगे। तुर्की में अपोजिशन रहनुमा और डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह अली बाबा जान का कहना है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने इख्तिदार को तोल देने की खातिर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ अपने अखबारी बयान में उन्होंने बावर कराया कि एर्दोगान की हुकूमत 2023 के इंतखाबात तक खड़ी नहीं रह सकेगी। तेलंगाना में बारिश और सैलाब की तबाहकारियों के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज से 1350 करोड़ की इमदाद की अपील की है, जबकि हुकूमत के तखमीने के मुताबिक रियासत में मजमूई नुकसानात 5000 करोड़ के हैं।
तेलंगाना हुकूमत ने इमदादी कामों के सिलसिले में फंड जारी नहीं किया और इसका मुकम्मल इन्हिसार मरकज से हासिल होने वाली इमदाद पर देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कल आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। गुज़िश्ता 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बारिश ने ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में ज़बरदस्त तबाही मचाई है। जानी और माली नुकसानात का अभी तक सही अंदाज़ा नहीं हो सका। इस कदर तबाही के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इमदादी कामों के सिलसिले में महज 5 करोड़ रुपये जारी किए, जो किसी भी एतबार से काफ़ी करार नहीं दिए जा सकते। चीफ मिनिस्टर की जानिब से शहर के लिए सिर्फ 5 करोड़ की मंजूरी पर सियासी हलकों के अलावा ओहदेदारों ने हैरत का इजहार किया है। शहर में जिस कदर तबाही हुई है, इसके मुताबिक कम से कम 100 करोड़ रुपए की इजराई की ज़रूरत थी, लेकिन वज़ीर आला ने सिर्फ 5 करोड़ का ऐलान किया। शहर हैदराबाद के कई ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी के कम होने के बाद जो मसाइल पैदा होने लगे हैं, वो अवाम के लिए इंतहाई तकलीफदा साबित हो सकते हैं और शहर के बेशतर इलाकों में जहां पानी जमा है, इन इलाकों से अब पानी के अखराज का अमल शुरू किया जा रहा है। जबकि अब भी अलजुबेल कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, पेट बशीराबाद, निज़ामापेट के अलावा नाचाराम, बोइनपल्ली, मख्ता, मदार साहब और BS मख्ता के इलाके पानी में महसूर हैं। जिन इलाकों से पानी खारिज हो चुका है, इन इलाकों में इंतहाई गंदगी, बदबू और ताफुन की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो कि संगीन वबाई अमराज का सबब बन सकती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को शदीद अवामी बरहमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों की जानिब से शहर में हुई बारिश की तबाहकारियों का जायज़ा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया जा रहा है। जिन इलाकों से पानी खारिज हो चुका है, इनमें हल्के असेंबली याकुतपुरे के कई इलाके शामिल हैं और इन इलाकों में अब बदबू और कचरा और बारिश के सबब बहकर आने वाले गंदगी जमा हो चुकी है। गंगानगर नाला, मौला का चिल्ला, तालाब कट्टा, नशेमन नगर के अलावा अमान नगर के इलाकों में जहां पानी जमा रहा और गुज़िश्ता दिन नाला टूट जाने के सबब जो सूरत हाल पैदा हुई, इससे निमटने में नाकामी पर अवाम में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। हाफिज बाबा नगर, जहां गुर्रम चरू के पानी के मुसलसिल अखराज के सबब पानी का तेज़ बहाव देखा जा रहा है। अलजुबेल कॉलोनी में जहां बारिश के पानी में कमी रिकॉर्ड की गई है, वहां कचरा और गंदगी हर तरफ फैल चुकी है, जो कि अतराफ व एकनाफ के इलाकों में भी बदबू ताफुन का सबब बनने के अलावा वबाई अमराज फूट पड़ने का खदशा है। गाजी मिल्लत कॉलोनी, जहां अलजुबेल कॉलोनी से होता हुआ पानी दाखिल हुआ था, अब बतदरीज ख़त्म होने लगा है, लेकिन इस इलाके की सूरत हाल भी वैसे ही है जहाँ पानी कम होने के बाद पैदा होने लगी है। मोहम्मदी लाइन्स, बगदाद नगर, बगदाद कॉलोनी, माधापुर, गच्चीबोली के अलावा निज़ामपेट के इलाकों में भी कचरा और गंदगी की सफाई ना होने के सबब सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शहर के नवाही इलाके में वाक़ सुबान कॉलोनी और अली नगर इलाके की आवाम की जिंदगियों पर पानी का खतरा मंडला रहा है, क्योंकि पल्ला चरू तालाब में पानी के बहाव अभी भी मुकम्मल तौर पर थमा नहीं है। पानी के बहाव और तालाब के करीब वाक़ कॉलोनियों के हालात का जायजा लेने के लिए आज सरकारी ओहदेदारों की टीम पल्ला चरू पहुंच गई। जिला कलेक्टर रंगारेड्डी, अमय कुमार, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद, सजनार के हमरा और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। पल्ला चरू तालाब कट्टे की मरम्मत और दीगर कामों की तफसीली जायजा लेने के बाद कलेक्टर रंगारेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर कामों की तकमील करें। जलपल्ली और उम्दा सागर तालाब से पल्ला चरू तालाब जुड़ा हुआ है और इन दो तालाबों के पानी का बहाव पल्ला चरू में जमा होने से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है और पल्ला चरू तालाब का कट्टा किसी भी वक्त खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। इन हालात को देखते हुए साइबराबाद पुलिस कमिश्नर रास तौर पर पल्ला चरू के हालात का जायजा ले रहे हैं। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश की तबाहकारियों पर राहती इक़दामात के लिए GHMC के तमाम कॉरपोरेटर्स ने 1 माह की और सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड के अरकान ने 4 माह की तनख्वाह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। मेयर हैदराबाद, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर्स और कोऑप्शन अरकान ने 1 माह की तनख्वाह देने का फैसला किया और इससे रियासती वजीर वल्दी नज़्म व नस्क KTR को एक मकतूब हवाले करते हुए फैसले से वाकिफ कराया। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से कोरोना केसेस में कमी का दावा किया जा रहा है, लेकिन माहिरीन ने दूसरे मरहले के केसेस की पेशकशी करते हुए हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो चौकसी में इजाफा करे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाज़ दीगर तिजारती इदारों के सर्वे की बुनियाद पर पेशकशी की गई है कि तेलंगाना में जारिया साल के अख्तिताम तक कोरोना के केसेस में 3 गुना इजाफा होगा। मौसम की तब्दीली का असर कोरोना के केसेस में इजाफे का सबब बन सकता है। तेलंगाना में स्कूल से इम्कान है कि दशहरे के बाद नवंबर में खुल जाएंगे। मुल्क भर में स्कूलों की दोबारा कशादगी के सिलसिले में मरकज के रहनुमा खतूत जारी होने के बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन तेलंगाना ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बशमुल महकमा सेहत, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इजलास तलब किया ताकि इनसे राय हासिल की जाए कि आया स्कूल्स को दोबारा खोलना चाहिए या नहीं।
راجندر نگر میں آج رات زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ خوف کے عالم میں مکانات سے باہر نکل آئے. مقامی افراد نے سلیمان نگر اور وادی محمود میں زمین سے آوازیں آنے کی شکایت کی اور کہا کہ چند سیکنڈز کے لیے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. خوفزدہ لوگ رات دیر گئے تک مکانات کے باہر ہی موجود رہے. راجندر نگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ نائٹ ڈیوٹی آفیسر سب انسپکٹر شویتا نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر سلیمان نگر کا دورہ کیا. مقامی افراد نے زمین سے آوازیں آنے اور ہلکے سے جھٹکے محسوس ہونے کی شکایت کی. رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے گگن پہاڑ شمشاباد پہنچ کر بارش میں بہہ جانے والے 4 افراد کے ارکان خاندان سے ملاقات کر کے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور تعزیت پیش کی. جمعے کی شام گگن پہاڑ پہنچے جہاں پر منگل کی رات ایک خاندان کے 4 افراد تیز بارش میں بہہ گئے تھے. ان میں سے اس خاندان کے 3 افراد کی نعشیں کل ہی دستیاب ہوئی جن کی 26 سالہ کریمہ بیگم، 4 سالہ عبداللہ اور 18 سالہ محمد عامر خان کی حیثیت سے شناخت کر لی گئی تھی. ان کی نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آ چکی ہے. اس خاندان کے ایک 7 سالہ لڑکے محمد عبدالرزاق عرف ایان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. صدر مجلس نے متاثرہ خاندان سے تفصیلات حاصل کرتے ڈی سی پی شمشاباد پرکاش ریڈی کو تلاشی مہم تیز کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے محکمہ ریونیو کے عہدیداروں سے بات کر کے متاثرہ خاندان کو ایکس گریشیا جلد از جلد جاری کرنے کی تجویز پیش کی.